In the last session, we have studied about some implementation of DFAs and we have solved few questions. The last question we have solved was DFA in which number of A's, okay, so we have written like this: number of A's in W mod 2 equal to 0 and number of B's in W mod 2 इक्वल टू 0। ये वाला हमने क्वेश्चन बनाया था, करा था, और इसका हमने सॉल्यूशन ये निकाला था कि Q0 से लेट से A Q1 में और वापस A Q0 में, ये B है Q2 में और यहाँ पे भी B है और यहाँ पे B और ये Q3 and this is A and this is A. This was the solution we have come up with in the last session. Now let's try to do the same question with another method, and now we are going to discuss the cross product method. यही सेम क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। इस मेथड को देखते हैं कि ये मेथड कैसे काम करता है एंड लेट्स ट्राई टू डू इट। सो हमारे पास क्वेश्चन यही है सेम कि W बिलोंग्स टू A, B एस्ट्रिक्स दैट इज एनीथिंग एंड वी हैव टू डिजाइन अ DFA फॉर नंबर ऑफ A's congruent to 0 mod 2 and number of B's in W is congruent to 0 mod 2। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। दिस इज अनदर वे टू राइट नंबर ऑफ A's mod 2 इक्वल टू 0। ओके, नाउ लेट्स सी। पहले मैंने क्या किया, मैं पहले ये वाला जो मेरा पहला पार्ट है इसके लिए DFA बना रहा हूँ। पहले वाले पार्ट के लिए DFA बना रहा हूँ और पहले पार्ट के लिए DFA क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द सिंबल्स। सिंबल्स आर A and B एंड देन सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द लैंग्वेज सेट। तो हम पहले कुछ लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग्स लिखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रिंग्स पॉसिबल इन दिस लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट पार्ट ओनली। सो द पॉसिबल स्ट्रिंग्स आर number of A's must be even. Okay, so I can have single B, this is the smallest string, or I can have not this one, but smallest string could be epsilon because it is also having 0 A's and that is even. And after that I can have single B, then 2 A's, then after that I can have 2 B's, then I can have A, B and so on. Okay, so now in order to draw the DFA for this, what I'll do is Q0 and this will be the initial state and final state. Why? Because we have epsilon available in my language set. So जब epsilon होता है language set में तो उसके अंदर initial state, final state होगी and then any number of B's can come. See, if I write 1B or 2B or any number of B's, that means it is having 0 A's. 0 A's is even. So I can have any number of B's, I will remain here only. And now I can have even number of A's. So if I get 1 A, I should not accept it. But if I get 2 A's, I should accept it. That is loop of 2 A's. And in between also any number of B's can come. So this is the DFA for this. Okay, so what I have assumed it, this is L1 and then I will draw the DFA for this, that is I will assume it L2. Okay, so this is L2 and this is L1, so this is L1. Now let me draw the diagram for L2 in the same manner. So first of all we will write the strings. So what are the strings? Epsilon, and now we should have even number of B's. What is the constraint on A's? Nothing. A's can be 0, 1, 2, 3, anything. Okay, so single A, then 2 B's or 2 A's, or I can have 3 A's
but B should be even. A's can be any, but B should be even. So similarly, what I'll do is, let's say this is Q2. Now, in order to differentiate between Q0, Q1, I have made another state as Q2, not Q0 or Q1, because otherwise you will get confused. And this is final state also and initial state also, because we have epsilon available here. Now, we can have any number of A's. As we are having any number of B's in the L1, we are having any number of A's in L2. So that's why this will come. And now if one B will come, I have not accepted it. But when two A's are coming, I have two B's are coming, then I have to accept. For three B's, I should not accept. For four B's, I should accept. So I have made a loop of two B's. And then in between, any number of A's can come. So this is the diagram of L1 and L2. Now see this. हमने क्या किया, अपने एक सुपर लैंग्वेज को, जो हमारी दो लैंग्वेजेस थी यहाँ पे, एक्चुअली ये लैंग्वेज है L, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है L, ये L बन रहा है. मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, L1 और L2, और दोनों के अलग अलग DFA बनाए. दोनों के अलग अलग DFA बनाने के बाद मैं अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ. देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे. ठीक है, इसको लेट से बोल देते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा 1 और इसको बोल देते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा 2. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. नाउ लेट्स सी द क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट. So what we are doing here is, let's say Q0 comma Q1 cross product with Q2 comma Q3. Okay, now what is the result? This Q0 will be multiplied by this, and what you will get is Q0 Q2 Q0 Q3 Q0 Q3. Then this Q1 will be multiplied by another 2. What we will get is Q1 Q2 and Q1 Q3. Okay, so now I am naming these as another states. Let's say I have named as Q0, Q1, Q2 and Q3. So these are the new names of these states. And now let's draw them. Q0, Q1, Q2 and Q3. Let's say this is the state. And now which one should be the final state and which one should be the initial state? Let's do that, find out that. So here Q0 was the initial state. So let me initialize it. Let's say this is the initial state and here this is the initial state. And here this is the final state and here this is the final state. The combination of Q0 and Q2 is Q0 and Q2 is Q0, capital Q0. So that's why this Q0 is the final and initial state. How we have come up with initial and final state in the cross product? जो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा 1 में इनिशियल स्टेट थी, फाइनाइट ऑटोमेटा 2 में इनिशियल स्टेट थी, उन दोनों की कॉम्बिनेशन का जो स्टेट बनी वो थी Q0. उसी को हमने इनिशियल बनाया और ऐसे ही फाइनल स्टेट का बनाया, तो हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट आ गई. नाउ सी दिस, हाउ टू मेक द ट्रांजिशंस. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. Q0 से B मिलने पे हम Q0 में ही रहते हैं. Q0 से B मिलने पे हम Q0 में ही रहते हैं. ओके, और हमारे पास Q0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे साथ में Q2 भी है और Q3 भी है. ठीक है, Q0 से B मिलने पे आप Q0 में रहते हो. ठीक है, और Q2 से, लेट्स से Q2 की अब बात करते हैं, क्योंकि Q2 0 के साथ में Q2 भी है. Q2 से B मिलने पे आप Q3 में जा रहे हो. देखो यहाँ पे दोबारा से Q0 से B मिलने पे Q0 में जा रहे हो, और क्योंकि यहाँ पे Q2 भी है साथ में, इसीलिए Q2 से B मिलने पे, क्योंकि यहाँ पे B का चेक कर रहे थे, B मिलने पे आप Q3 में जा रहे हो. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज Q0 एंड Q3. Q0 से B मिलने पे Q0 में, Q2 से B मिलने पे Q3 में.
So you are going from Q0 Q2 on receiving B to Q2 Q3 which is Q1. Okay, so this is what you are getting on receiving B. Okay, again let's see this again. So what you are getting is, see here again, Q0 से A मिलने पे Q1 में जा रहे हो आप. फाइनाइट ऑटोमेटा 1 को देखो, Q0 से A मिलने पे Q1 में जा रहे हो. ओके, नाउ क्योंकि Q0 के साथ में यहाँ पे ये Q2 भी है, ये Q2 भी है, तो दोनों को देखना है. अब Q2 से, इस Q2 से यहाँ पे आपने A को चेक किया था तो यहाँ पे भी A को चेक करो, तो Q2 में जा रहे हो. देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, Q2 से A मिलने पे Q2 में जा रहे हो. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज Q1 एंड Q2. सो व्हाट इज Q1 एंड Q2 इज दिस, दैट इज Q0 Q2 कैपिटल Q2. तो दैट्स वाई व्हाट यू आर गेटिंग इज, लेट्स राइट दिस लाइक, इसको Q2 लिख देते हैं, इसको Q3 लिख देते हैं. सो दिस विल बी A. What, it doesn't matter what you name can be anything. Okay, so I have just swapped Q2 and Q3 their places, otherwise it will look awkward. Okay, now let's Q0 is completed. Now let's move on to this another one. Now let's say this Q0 and Q3. From Q0 on receiving A I am getting Q1, and because we have Q3 also with this, so यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, Q3 से A मिलने पे आप कहाँ पे जा रहे हो, Q3 में ही हो. देखो ये वाला A मिलने पे Q3 में ही हो. So what you are getting is Q1 and Q3, Q1 and Q3. What is that? Q3 only. So that's why from Q1 on receiving A you will be in Q3. और अब मैं एक और बता देता हूं आपको इसी से, Q1 से, दैट इज यहां से B मिलने पे क्या होगा. सो Q0 से B मिलने पे आप Q0 में ही हो, ये वाला पाथ फॉलो करोगे. और यहाँ पे Q3 से B मिलने पे आप कहाँ पे हो, Q2 में, ये वाला पाथ फॉलो करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे आया Q2. सो Q0 एंड Q2, Q0 and Q2 is Q0, capital Q0. That's why you are going on this. So that's how you can complete it. And in the end, what you will get is this. In the end, you can complete it and you will get this. Okay. So whatever we have done earlier, we have got the same result. Okay. So this can be done by using cross product also. But exam में ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, हम इस मेथड से DFA नहीं बनाते हैं. ये हमें कुछ और तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा. ये सिर्फ हमने एक आइडिया लिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर सेम ही आएगा. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस वन ऑल्सो. अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास में फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट कैसे निकाली, तो उसका ध्यान रखना है. और दूसरी चीज, अगर ये मॉड 0 ना होता, ये हमारे पास 0 ना होता, यहाँ पे 1 होता, या एक में 1 होता और एक में 0 होता, तो उसी के अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल स्टेट होते. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, लेट से यहाँ पे ये 0 की जगह 1 होता और ये 0 ही होता, यानी कि नंबर ऑफ एज मस्ट बी ऑड एंड नंबर ऑफ बीज मस्ट बी इवन. तो उस केस में यहाँ पे ये फाइनल स्टेट ना होती, ये क्या होती, नॉन फाइनल, और ये वाली फाइनल होती, क्योंकि इवन नंबर ऑफ एज की बात नहीं हो रही है, ऑड नंबर ऑफ एज की बात हो रही है, बिकॉज मॉड में बाद रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और यहाँ पे 0 ही है तो ये तो यही रहता. अब इसके बाद यहाँ पे इनिशियल स्टेट तो Q0 हो जाती. देखो इनिशियल स्टेट तो Q0 होती, क्योंकि यहाँ पे Q0 और ये Q2 दोनों इनिशियल हैं, तो Q0 और Q2 का इनिशियल ये है, इसीलिए Q0 को हमने इनिशियल बना दिया. लेकिन फाइनल अब ये नहीं होगी. फाइनल कौन सी होगी, Q1 और Q2. Q1 और Q2 का कॉम्बिनेशन क्या है, Q2, कैपिटल Q2. सो वी विल मेक दिस एज फाइनल स्टेट. तो इस तरह से फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स का सिलेक्शन होगा कि कौन सी फाइनल है, कौन सी नॉन फाइनल है.
So this is about cross product method. Okay, any doubts here? No, sir. Now I'll give you one more question, and this question will give you a very quick result. I'm just giving you a trick, and by using this trick you can solve any question of this type. So the question is, we have to draw a DFA. We have to draw a DFA. I'll write the question here. Sigma is A comma B, and number of A's in W mod 3 equal to 0, and number of A's in W mod 3, number of B's mod 3 is equal to, let's say this is 2 and this is 0. So what it means is, in words it can be written as number of A's is divisible by 3 and number of B's is divisible by 2. Okay, this is what it means. Okay, now if we have to draw the DFA for this, किस तरह की स्ट्रिंग्स होंगी इसमें? लेट से सबसे पहले तो एप्सिलॉन होगी, क्योंकि 0 नंबर एज हैं, 0 नंबर पीज हैं, एंड दैट इज डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ. ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग इज लेट से बी, क्योंकि 0 एज हैं और 2 बीज हैं. अब मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा कि क्यों है ये स्ट्रिंग, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 0 एज हैं और 2 बीज हैं. 2 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट्स वाई इट इज कमिंग. Then triple A, okay, 0 B's and 3 A's. Then combination of both, that is A, B, B, and any combination of this, let's say A, B, B, A, B, A, B, A, B, B, A, and any combination of this and so on. इस तरह की strings इसमें acceptable होंगी. What are the different types of string which are not acceptable? Anything which is left. Okay, for example, single B is not acceptable, single A is not acceptable, या double A is not acceptable, triple B is not acceptable. So these are not acceptable strings. अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक का ध्यान रखिए. अब ये डिविजिबल बाय वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, डिविजिबल बाय वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, या मॉड 2 और मॉड 4 या मॉड 10, 20 जितना भी हो, उस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे. और 0 की जगह कुछ भी हो उसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं. सुनिए, देखिए ध्यान से. लेट से मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ना हमें इसकी ज़रूरत है यहां पे. अब देखिए, सबसे पहले हमें कुछ दो चीज़ें हैं यहां पे, 1 और 2, इन दो चीज़ों को अलग अलग बना रहे हैं. आपकी मर्जी है किस चीज को आप वर्टिकली बनाना चाहते हो, किस चीज को आप हॉरिजॉन्टली बनाना चाहते हो. चूज वन. लेट से आई एम चूजिंग दिस टू बी मेड वर्टिकली एंड दिस टू बी मेड हॉरिजॉन्टली. वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. सी व्हाट आई मीन इज, लेट मी ड्रॉ दिस. सो दिस इज Q0, इसको इनिशियल स्टेट बनाया, और मॉड 3 की बात हो रही है तो 3 का लूप बना दो, 3 का लूप बना दो, और ये हमारे पास लूप बन गया 3 का. नंबर ऑफ एज की बात हो रही है तो ए, ये हो गया 3 का लूप. ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको 3 का लूप बनाने की जगह इसको 3 को अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे कि एक बार 1 पे गए, फिर ऐसे एक और गए, और फिर वापस ऐसे आ गए, तो ये हमारा लूप बन जाएगा 3 एज का. तो हमने ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एज की बात हो रही थी और मॉड बाय 3 थी, इसलिए ए की बात हुई और मॉड 3 की जगह हमने 3 का लूप बना दिया. देन वी हैव मॉड 2 for B's, and that we are trying to make as
तो मैंने यहाँ पे एक गलती ये कर दी कि मैंने इसको हॉरिजॉन्टली बना दिया, अब इसको वर्टिकली बना रहा हूँ। दूसरा भी तरीका बता दूंगा अभी। सो हॉरिजॉन्टली इज दिस एंड वर्टिकली इज दिस। सो हॉरिजॉन्टली हमने नंबर ऑफ एज mod 3 बना दिया, अब हमें वर्टिकली बनाना है फॉर mod 2। तो यहीं से स्टार्ट करा b और ये हमने नाम रख दिया इसका Q3, और क्योंकि 2 का लूप बनाना है तो इसको ऐसे बना दिया। नाउ दिस इज डन, बट इट इज नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि हमने क्या किया है, वर्टिकली बनाया और हॉरिजॉन्टली बनाया केवल Q0 पे। इससे क्या होगा, ट्रिपल ए या इसके कितने भी कॉम्बिनेशन हो ये आते रहें और हमारा चल जाएगा। यानी कि इसने क्या बनाया, ट्रिपल ए के कितने भी रिपीटिशन हो वो सारे एक इधर वाली साइड चलेंगे, ट्रिपल ए के जितने भी रिपीटिशन होंगे, और डबल बी के जितने भी रिपीटिशन होंगे वो इधर चलेंगे। बट इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब इस तरह की स्ट्रिंग भी तो हो सकती है, ए बी ए, बीच में आ गए बी। तो अब मेरे पास एक ए आने के बाद मैं यहां पे आ गया, एक ए आने के बाद मैं यहां पे आ गया, तो ये बी वाले के लिए मेरे पास यहां पे कोई भी चॉइस नहीं है। I don't have any choice. So we have to make vertical and horizontal at every state. Okay, we have to make vertical and horizontal at every state. What I mean is, तो यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B, और ये बना दिया हमने Q4। ऐसे ही यहाँ पे भी B और यहाँ पे भी B, ये बना दिया हमने Q5। हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली बन गया। एंड हियर देखो इस तरह की स्टेट भी आ सकती है कि बी ए देन बी ए, इसमें 2 बीज हैं और 3 एज हैं, विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बट ये सिंगल बी मिलने के बाद Q0 से हम Q3 पे आ गए। देख लो ये वाले रास्ते से Q0 से Q3 पे आ गए, बट Q3 से A पे जाने का रास्ता नहीं है। इस वाले A के लिए मेरे पास कोई वे नहीं है, कोई पाथ नहीं है। सो दैट्स वाई आई हैव टू ड्रॉ horizontal loop here also for A and A. Now this is completed. Now this is completed. Except that we have not finalized which is our final state. Everything is completed. All the paths are written now, but we have not finalized what is our final state. तो अभी हमारे पास सारे पाथ तो बन गए हैं। अब फाइनल स्टेट कैसे बने, देखो फाइनल स्टेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हमें एक्सेप्ट कराना है, व्हाट वी वांट टू एक्सेप्ट। सी हियर, अगर मैं Q0 पे हूँ, व्हाट इट मीन्स इज आई हैव नॉट सीन एनीथिंग एट Q0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो Q0 नॉट सीन एनीथिंग, और आई कैन सी, और आई कैन से नॉट सीन एनीथिंग, और आई कैन से I have seen A's in multiplication of 3 and B's in multiplication of 2. Why? बिकॉज Q0 पे हम तभी आ रहे हैं या तो हमने कुछ भी ना देखा हो या 3 एज के मल्टीप्लीकेशन देख लियो 3 टाइम्स। क्योंकि क्या होगा, जब मैं एक ए देखूंगा फिर दूसरा और फिर थर्ड ए देखूंगा तब यहां पे आऊंगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बी यहां पे देखा और एक बी यहां पे देखा तो 2 बी देखने के बाद आ गया हूं, दोनों भी हो सकते हैं। इसीलिए या तो मैंने कुछ भी नहीं देखा या मैंने एज और बीज के इतने मल्टीप्लीकेशन देखे। बट देन इफ आई गो टू Q1, अगर मैं Q1 के बारे में लिखूं तो Q1 में क्या होगा, Q1 इज अ स्टेट वेयर आई हैव सीन 1A, आई हैव सीन 1A। Q1 पे हम कब आ सकते हैं, जब हमने 1A देख लिया हो। ये वाला देखो यहां से ये 1A देख लिया हो, 1A। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि आई हैव सीन नंबर ऑफ एज mod 3 इज इक्वल टू 1? वाई? बिकॉज यहां पे Q1 में ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 एज देखे, लेट से 4 एज देखे, तो
3 एज के लिए तो मैं Q0 पे ही रहा और फिर एक और ए के लिए Q1 पे आ गया। ये भी तो हो सकता है, दैट इज ऑल्सो मीनिंग। सो दैट मीन्स आई हैव सीन what I have seen, not 1a but a mod 3 equal to 1. This is what I have seen. And number of b's is what? Number of b's is what? That is 0. And b mod n can be anything, 2 3 4 doesn't matter, is equal to 0, because horizontally we are not taking care of b's, we are taking care of a's only horizontally. When we go vertically, then we clear of b's, we do not clear of a's that time. Okay, ऐसे ही अगर मैं Q1 की बात Q2 की बात करूं तो ऐसे Q2 के लिए बोल सकता हूं आई हैव सीन a mod 3 equal to 2. Why? Because let's say a ये 5 a's हुए, तो Q0 से स्टार्ट किया, इन 3 a's के बाद Q0 पे ही रहा और फिर इसके लिए Q1 पे आ गया और फिर इसके लिए Q2 पे आ गया। तो ये 2 एज एक्स्ट्रा होंगे तभी ऐसा होगा। अगर ये 5 की जगह 8 होते तब भी 6 एज के लिए Q0 पे ही रहता और बाकी 2 एज के लिए मैं Q2 पे पहुंच जाता। सो दैट्स वाई रिमाइंडर 2 एंड बीज कितने हो गए? मॉड 2 इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे 2 की बात हो रही है तो 2 ही रखते हैं इसको। सो बी मॉड 2 इक्वल टू 0। ऐसे ही Q3 के लिए लिख सकते हैं। Q3 के लिए अगर मैं Q0 से Q3 पे जा रहा हूं, Q3 पे, तो मैंने एटलीस्ट 1A 1B देख लिया होगा, ये इस रास्ते से आया होगा और कम से कम 1B देखा होगा। एज कितने भी हो सकते हैं लेकिन वो 3 के मल्टीपल होंगे। क्यों होंगे 3 के मल्टीपल? क्योंकि हमने Q0 Q1 Q2 कितनी बार भी ट्रेवर्स किया होगा, Q0 पे वापस तभी आए होंगे जब हमारे वो मल्टीपल ऑफ 3 रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? आई हैव सीन बी मॉड 2 इक्वल टू 1 एंड ए मॉड 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ हमारा Q3 का। ऐसे ही हम Q4 के बारे में लिख सकते हैं। अब देखो Q4 के बारे में जरा ध्यान से सुनो। Q4 थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, Q4 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे डिफरेंट है। यहां पे जब हम Q1 पे आए थे तो ये मॉड 2 लिखने का एक और कारण भी है। n नहीं होगा, ये 2 ही होगा। इसको लिखने का एक और कारण भी है। क्यों? क्योंकि Q0 पे से Q1 पे आने का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है। आई डोंट हैव दिस ओनली दिस वे। व्हाट आई हैव इज, केवल ये रास्ता नहीं है, आई हैव दिस वन वे ऑल्सो, कि एक बार B, एक बार A और फिर एक बार B। तो नंबर ऑफ बीज तो 2 ही रहे, तभी तो ये 0 आया। लेकिन नंबर ऑफ एज चाहे ये वाला रीड करूं या ये वाला रीड करूं वो एक ही रहेगा, इसलिए रिमाइंडर यहां पे 1 आया था। तो Q1 पे आने के ऐसे 2 रास्ते हैं। ऐसे ही Q4 पे आने का क्या रास्ता है? या तो मैं क्या करूं, इस वाले रास्ते से Q0 से Q3 के रास्ते से, ये वाला जो डार्क ग्रीन में बना रहा हूं मैं, इस रास्ते से Q0 से Q3 एक B, फिर उसके बाद ये वाला एक A, ये वाला एक A, तो यानी कि Q4 में B भी एक है और Q4 में A भी एक है। दोनों एक एक रीड किए हैं मैंने। ठीक है, इसको भारी मत बनाओ, इसको बहुत आसानी से एक बार फिर से मैं बना के समझा दूंगा। अभी जितना समझ पा रहे हो उतना समझो, नेक्स्ट टाइम अभी एक और बार बताऊंगा, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Q4 में हमारे पास एक B रीड हुआ है और एक A रीड हुआ है। आप किसी और रास्ते से जाओगे तब भी यही सेम काम होगा। देखो कैसे, अगर मैंने Q0 से ये वाला रास्ता लिया होता, ये वाला पाथ लिया होता, तो एक A रीड हुआ और ये वाला एक B रीड हुआ, तो मैं किसी भी रास्ते से चला जाऊं एक A रीड होगा, एक B रीड होगा। तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, व्हेन आई एम इन Q4 आई हैव रीड B mod 2 इक्वल टू 1 एंड A mod 2 इक्वल टू 1, दोनों 1 1 हो गए। ऐसे ही अगर Q5 में जाऊं, देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो मैं ये तरीका बता रहा हूं। Q5 में जाऊंगा तो Q5 में क्या होगा, देखो दोबारा से Q5 के लिए
या तो ये वाले रास्ते से जाऊं, एक ए, फिर दूसरा ए, और फिर इस वाले रास्ते से एक बी, यानी कि दो ए और एक बी। या फिर एक रास्ता यह है कि एक ए बी, एक ए और एक ए, यानी कि दो ए एक बी, चाहे ऊपर वाले रास्ते से जाऊं या नीचे वाले रास्ते से जाऊं। या फिर एक रास्ता ये भी है, एक ए एक बी, ये वाला एक बी, और फिर दोबारा से एक ए, ये वाला वे भी है। दोनों ही तीनों ही रास्ते में मेरे पास क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है Q5 के अंदर कि B mod 2 इज इक्वल टू 1 एंड A mod 3 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो ए रीड हो रहे हैं और उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, और बी एक ही रीड हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटर्न फॉर ऑल माई स्टेट्स। एंड नाउ बेस्ड ऑन व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, अगर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था 0 0, तो 0 0 वाली कौन सी स्टेट थी, Q0। देखो Q0 में हमने क्या लिखा था, ये मॉड के रूप में A mod 3 इक्वल टू 0 एंड B mod 2 इक्वल टू 0, दोनों 0 0 हैं, तो मैं Q0 को फाइनल बना दूंगा। लेट से ये आया 0 और ये आया 1, नंबर ऑफ एज mod 3 इक्वल टू 0, तो यानी कि नंबर ऑफ एज mod 3 इक्वल टू 0 कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है और एक मेरे पास यहाँ पे है mod 3 इक्वल टू 0, बाकी सब जगह 0 नहीं है। और ये बोला है उसने नंबर ऑफ बीज mod 2 इक्वल टू 1, वो यहाँ पे तो 1 नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब Q3 मेरे पास क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। तो बेस्ड ऑन व्हाट इज द कंडीशन आई कैन फाइंड आउट विच इज माई फाइनल स्टेट। नाउ जिसको अच्छे से ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अब मैं दूसरा तरीका ये समझा रहा हूँ, इसको भी देख लो एक बार। ये थोड़ा सा तेज करने का तरीका है बट ये रटना हुआ, इससे समझ में नहीं आया लेकिन हमने रट लिया, आंसर निकाल लिया, बस ये है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ एज इन W mod 3 इक्वल टू 0, नंबर ऑफ बीज इन W mod 2 इक्वल टू 0। ये 0 की जगह 1 2 भी हो सकता है और ये नीचे वाला 0 की जगह 1 भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, लेट से इस वाले काम को इस बार मैं बना रहा हूँ वर्टिकली और इस वाले काम को मैं बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। तो Q0 लिया, इसको इनिशियल स्टेट बनाई, वर्टिकली पहले एक लूप बनाया 3 का और ये बन गया मेरा लूप A A A। फिर बीज वाला लिया और इसको लूप बनाया Q3 और ये मेरा बन गया B का 2 वाला लूप। अब क्योंकि बीच में भी एज और बीज हो सकते हैं इसलिए हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हर जगह बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी B आया, यह आया Q4 और यहाँ पे भी B आया और यहाँ पे Q5, यहाँ पे भी B आया और यहाँ पे भी B आया और ऐसे ही यहाँ पे A, ये गलत हो गया है यहाँ पे, ये A और ये A। तो ये तो हमारा बन गया है DFA, ये DFA बन गया है। लेकिन फाइनल स्टेट कैसे चूज करेंगे, फाइनल स्टेट चूज करने का अगेन एक शॉर्टकट क्या है, Q0 पे कैसे पहुंच सकते हो बिना कुछ देखे, तो यानी कि A mod 3 इक्वल टू 0, A mod 2, B mod 2 इक्वल टू 0। Q1 पे कैसे पहुंच सकते हो, Q1 पे देखो, Q1 पे एक A रीड करा होगा और B कुछ रीड नहीं करे, कोई B रीड नहीं किया है, तो यानी कि A mod 3 इक्वल टू 1, B mod 2 इक्वल टू 0। देन Q2 पे आप कैसे पहुंचे होंगे, एक A ये रीड हुआ, एक A ये रीड हुआ, कोई B रीड नहीं हुआ, नो B's आर रेड, सो A mod 3 इक्वल टू 2, B mod 2 इक्वल टू 0। क्योंकि कोई B रीड ही नहीं हुआ इसलिए 0, जितने A रीड हुए हैं उतने मैंने रिमाइंडर में लिख दिए। देन Q3 पे कैसे पहुंचोगे, Q3 पे पहुंचने के लिए एक B रीड किया है और कुछ रीड नहीं किया, नथिंग, तो यानी कि A mod 3 इक्वल टू 0, B mod 2 इक्वल टू 1, क्योंकि एक B रीड हुआ था, A कोई रीड नहीं हुआ।
ऐसे ही Q4 पे पहुंचने पे क्या होगा, देखो एक B रीड हुआ और एक A रीड हुआ, दो चीजें रीड हुई एक एक, तो इसीलिए A mod 3 इक्वल टू 1, B mod 2 इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर Q5 पे जाओगे तो 1B 2A एंड 1A and 1A, so that is 2A's, so that's why you will write Q5 is equal to A mod 3 equal to 2 and B mod 2 equal to 1. So this is how you have written all the states, and which one you have to make the final state, because ये दोनों 0 0 हैं तो ये वाला फाइनल हो गया, that is Q0। अगर आपके पास ये होता number of A's mod 3 equal to 2 and number of B's mod 2 equal to 1, so A's and B's 2 1, so A's and B's 2 1, so Q5 will be our final state. So this is how we can make our DFA very easily. Okay, let's do one more question, and let's try to do it in the same thing. Let's say the another version of this question is number of A's in W mod 3 is greater than equal to number of B's in W mod 2। अब देखो क्या है, number of A's mod 3 must be greater than equal to number of B's mod 2, यानी कि यहां पे जो मॉड आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू यहां वाले मॉड से होना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। यानी कि देखो मैंने ए पहले लिखे हैं, ए फिर ए और ए ऊपर लिखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऊपर वाली वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो देखो 0 0 इक्वल यानी कि फाइनल, 1 0 ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर देन बिलो तो फाइनल, ये वाली भी फाइनल, ये नॉन फाइनल, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 1 is greater than 1 equal to 1 final, 2 is greater than equal to 1 final, so except 1 all are final states here. Okay, so that's why we can find out like this, more than one final state is possible. Another version like number of A's in W mod 3 is, let's say, इक्वल टू नंबर ऑफ बीज इन W mod 2, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो 0 0 तो ये वाला फाइनल और 1 1 ये वाला फाइनल, केवल ये दो फाइनल होंगे और बाकी कोई फाइनल नहीं होंगे उस केस में। तो हमने क्या किया, एक बार एक डायग्राम बनाया और ये सारी स्टेट्स ऐसे लिखी, उसके बाद चाहे किसी का भी आंसर निकाल लो आप, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, मॉड वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह से, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार लिखने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नाउ सर, यस सर जैसे यहाँ पे तो हमारा अल्फाबेट ए और बी का है, अगर लेट्स से अल्फाबेट ए बी सी आ जाएगा तो वैसे ही सर फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बढ़ते जाएंगे। नहीं, ए बी सी में नहीं चलेगा ये काम, और ना ए बी सी का इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ए बी सी के अंदर हमारे पास अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो एक्स वाई प्लेन था, उसके अंदर जेड प्लेन 3D मॉडल बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो it is possible only if we have either AB or instead of AB we can have 0 1, केवल दो ही अल्फाबेट हो सकते हैं। ओके सर, so based on this only, let's say another question is number of A's mod 3 equal to 0 and number of B's in W mod 3 equal to 0। अब दोनों जगह मैंने 3 3 ले लिया, एक जगह पहले 2 था, एक जगह 3 था, इस बार मैंने दोनों जगह 3 3 ले लिया। तो अब क्या करेंगे, अगेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, Q0 एक हॉरिजॉन्टली बनाओ, ये हमने बनाया हॉरिजॉन्टली 3 का लूप, ए, फिर B का लूप बनाना है वर्टिकली, तो B देन B एंड लेट्स से दिस इज हियर B। ऐसे ही हर एक स्टेट पे बना देना है, तो यहां पे भी B
B, and let's say this is B, and this is B, and let's say this is B. अब B के सारे बन गए, ऐसे ही A के लिए ये बनाना पड़ेगा A एंड A, ऐसे ही A एंड A. तो इस तरह से हमारे पास विद इन 10 सेकेंड्स डायग्राम बन के तैयार. ठीक है. अब फाइनल स्टेट कैसे बनेगी? अगेन आपको लेट से Q7 का पता करना है कि Q7 कौन सी स्टेट है. तो आपको सारी स्टेट लिखने की भी जरूरत नहीं है. बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट. ओके, Q7 का देखो कैसे पता चल रहा है. Q7 पे जाने के लिए एक A रीड किया, दूसरा A रीड किया और तीसरा B रीड किया. तो Q7 इज नथिंग बट what is this? A mod 3 is equal to 2 and B mod 3 is equal to 1, क्योंकि 1 B रीड हुआ था और 2 A रीड हुए थे. दिस इज Q7. हमें तो 0 0 वाला चाहिए था, तो 0 0 वाला तो यही है, क्योंकि कुछ भी रीड नहीं किया तो यही वाली फाइनल हो गई. बट यहाँ पे अगर 2 होता और यहाँ पे 1 होता तो मैं Q7 को फाइनल बना देता. ठीक है. तो इस तरह से मिनट्स में आंसर आ जाएंगे. मिनट्स भी नहीं, सेकंड्स में आंसर आ जाएंगे. ओके. नाउ लेट्स सी अनदर कॉन्सेप्ट विच इज मोर important. I'm pausing the video and it will be covered in the next video.